the three chapters, that is the crisis of democratic order, regional aspirations, and recent development in Indian politics from the second book. We are left only with these three chapters. And if we look at the marks, yeah, the marks which have been allotted, it is 4, 6, and 8. That is, you can expect any question up to 4 marks in crisis of democratic order. That can be 2 MCQs and 2 marker question, regional aspirations 6, and recent development is 8. That is the weightage for this chapter is more. I had told you this while I was doing the Congress system. We are only left, but please also look कि इस chapter का सबसे ज़्यादा weightage है, तो no single concept from this chapter should be left out. Right, so I'm starting the revision of all these chapters today. So crisis of democratic order is one chapter which is, आज हम जिस recent development अगर हम बात करते हैं ना, तो जो पॉलिटिक्स आज का है ना रियल में, दैट इज वेयर ये वाला, इससे पहले वाला जो हमने लास्ट में किया था, दैट इज द ब्रेकिंग अप ऑफ कांग्रेस, नंबर ऑफ कोएलिशंस, नंबर ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज, दैट वाज वन पार्ट. But there was a turning point in the Indian history of politics, and that was this particular area when there were so many changes in Indian political system, governance. There were so many things which we can say that yes, the judiciary could do, the judiciary could not do. So, crisis is those tensions which was there around 70s, जब political turmoil था, as I said, and one of the very important one was the emergency rule, imposition of emergency rule. And ये जो emergency rule था ना, that actually gave new questions कि एक prime minister, एक ruling party के पास what are the powers. As in the last chapter we have already read कि 70 was a turmoil क्योंकि गवर्नमेंट, जुडिशरी, गवर्नमेंट और इंटरनल पॉलिटिक्स जो था, देयर वर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे. And then there was an amendment made by the government, that is the 42nd amendment, which is also called as a constitutional act. दे ये मतलब कि इमरजेंसी के पीरियड में किया था, इंदिरा गांधी ने किया था, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि उन्होंने प्रियम्बल को छेड़ा था. एंड दैट अमेंड, ये पेपर में 1 मार्कर क्वेश्चन के अंदर आया हुआ है, she had amended the preamble of the constitution under 42nd amendment, which normally a government is normally not given this permission. कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स को हम छेड़ते नहीं है, वी कैन नॉट. देन नेक्स्ट वाज द इकोनॉमिक कंटेक्स्ट. इकोनॉमी हमारा बहुत पुअर था फ्रॉम 60s, बिकॉज जब लाल बहादुर शास्त्री आए थे, देन ऑल्सो ही कॉइन्ड दैट जय जवान जय किसान, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस थे. And India had been witnessing consequently the wars, पहले चाइना के साथ था, फिर पाकिस्तान के साथ, and within 4-5 years हमारा बांग्लादेश के साथ भी वॉर था. और वॉर जो था वो सिर्फ एक वॉर नहीं था, it also gave the pressure on Indian government politically and economically, because we had to seek 8 million refugees. और अमेरिका ने इस एरिया में आकर हमारे साथ जो है बिल्कुल दे मतलब कि रिफ्यूज टू गिव एनी कोऑपरेशन. हमारे ऑयल प्राइसेस, दूसरी तरफ इंटरनेशनल एरिया में ऑयल के प्राइसेस भी ज्यादा हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा था. एंड गवर्नमेंट ने एक चीज किया कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की सैलरी कम कर, मतलब कि स्टॉप कर दिया, बट दैट कुड नॉट प्रिवेंट एनी डेफिसिट ना. तो दैट वाज वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट.
चारों तरफ इन्फ्लेशन, इंडिया वॉज फेसिंग वन ऑफ द वर्स्ट इकोनॉमिक टर्मोइल एट दैट टाइम, क्योंकि टैक्सेस तो अपनी जगह लगती हैं. And the next was कि due to this unemployment, due to the inflation, most मतलब कि both Gujarat and Bihar faced movements, and which were also led by senior politicians जिन्होंने पहले एक्टिव पॉलिटिक्स में रहना छोड़ दिया था, वो आए थे वापस. लाइक जयप्रकाश नारायण जो थे, उन्होंने टोटल रेवोल्यूशन, यानी कि उन्होंने कहा सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फीयर में कंप्लीट चेंज शुड बी देयर. और उन्होंने एक फेमस मार्च लीड किया टू पार्लियामेंट. सेम वाज इन गुजरात आल्सो, एंड इन गुजरात इन फैक्ट प्रेसिडेंट्स रूल भी डाला गया था. द नेक्स्ट वाज एक आपका मतलब कि इंटरनेशनली एंड बिकॉज ऑफ द मतलब कि द प्रॉब्लम्स, वॉर, इकोनॉमी हमारा खराब था, पॉलिटिकली they were becoming weak and conflict with the judiciary. That is because the fundamental rights जो मतलब कि गवर्नमेंट जो है उन्होंने चेंजेस कर दिए कॉन्स्टिट्यूशन में. उन्होंने 5 years की जगह पर 6 years कर दिए. They said that the prime minister, vice president and vice president are not answerable. So ये सारे चेंजेस जो थे मतलब कि they started giving directive principles were given more, एंड राइट टू प्रॉपर्टी उसको चेंज किया. और सबसे बड़ा जो मिस्टेक था वो ये था कि द अपॉइंटमेंट ऑफ द सीनियर जजेस, सरपासिंग दो सीनियर जजेस लाइक शैलात, हेगड़े एंड ग्रोवर. A.N. Ray was appointed as the सुप्रीम कोर्ट जज, जो कि काफी जूनियर थे. और ये जो सारे चीजें थी जिसके अंदर जुडिशरी शुड हैव बीन इन्वॉल्व, the constitution should not have been touched, these also cropped up with the tension. And इसकी वजह से क्या हुआ? There was agitation, there were mass protests, the opposition leaders जो थे they turned completely इनके against हो गए. एक होता है opposition leaders शोर मचाते हैं, लेकिन there was a big political confrontation, and it was believed कि there would be a mass rally against the ruling government at रामलीला मैदान. मतलब ये जो चीज थी, ये this was anticipated. It was not कि होगा, मतलब उन लोगों ने तो मास रैली करना था, लेकिन इंदिरा गांधी जी को लगा कि अगर ऐसा मास रैली होगा तो जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है इंडिया का वो खराब हो जाएगा. मास रैली तो होनी थी, देयर वाज अ मतलब की प्रपोज मास रैली एट रामलीला मैदान इन दिल्ली, लेकिन वो जो रैली थी that would turn violent, that would turn against the government, the law and order would go against the government. ये सोचकर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी इंपोज किया. अब ये प्रॉब्लम क्या थी कि इमरजेंसी इंपोज करने के बहुत सारे गलत डिसीजन है. मतलब दैट इज वन ऑफ द, हम लोग कहते हैं, डार्केस्ट डे ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स. एंड द रीजन इज, पहली बार इंटरनल लॉ ऑर्डर को मतलब कि खराब, मतलब कि यू फील it should not have been taken as threat to the government. कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना, इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के लिए जो तरीका उन्होंने अपनाया था, द वे शी हैड टेकन द मैनर, मीन्स एट नाइट इट वाज, मतलब कि देयर वाज शी मेट विद द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को मीट करके शी जस्ट इम्पोज and even she informed her cabinet in the morning at 6 a.m. The electricity supply to the main political areas and newspaper was cut, and there was a complete censorship on what to be published and what not to be published. यानी कि आपके फंडामेंटल राइट, जिसको हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, दैट वाज कंप्लीटली टेकन. और इमरजेंसी में होता क्या है? इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी इज देयर, मेडिकल इमरजेंसी इज देयर, एंड पॉलिटिकल इमरजेंसी इज देयर. तो मेडिकल इमरजेंसी आपका कोविड था. फाइनेंशियल इमरजेंसी हो सकता है आपके जो ट्रांजैक्शंस हैं, पेमेंट्स हैं, उन पर
there might be certain control. And political हो गया where your fundamental rights, your civil rights are completely taken off. यानी कि common man doesn't have any right to speak up. आपके साथ सही हो रहा है, गलत हो रहा है, you cannot speak up. And such atrocities took place across India. There were examples like in Kerala, some youth was killed and nobody could raise their voice because आपके पास right नहीं था. Whether it was a murder, whether it could not be. Even in Delhi gate के अंदर जो Delhi gate है वहां पर it is said that there were mass sterilization, लोगों को पकड़ के जो है sterilize किया गया था, but no questions could be done. The civil rights were abolished. और इसकी वजह से क्या हुआ? There was a big setup for the Congress. कांग्रेस के लिए वो एक बहुत ही बड़ा सेंटेंस था. अब क्वेश्चन आया कि was the emergency necessary? तो जब शाह कमीशन बिठाया गया later on after the emergency period, a commission was set up under Shah. When they questioned, पहले तो इंदिरा गांधी ने रिस्पॉन्स करने से मना कर दिया, but later on when she responded, she said she felt a threat to the law and order of the country. सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, देयर वर सर्टेन, यू कैन से ना झोल है, देयर वर सर्टेन मतलब की कॉम्प्लेक्सिटी, देयर वाज नो क्लैरिटी कि व्हेन अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज इमरजेंसी. मे बी शी मिस इंटरप्रेटेड कि लॉ एंड ऑर्डर जो है, कोई प्रोटेस्ट ऑन प्रोटेस्ट इज पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच. हाँ, the protest should be in a silent manner. But at that time, many of the leaders, अभी जो हमारे बहुत main leaders हैं NDA के, they all were arrested under preventive detention. Some of them went underground to prevent the arrest. बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था, पॉलिटिकल डिटेंशन में रखा गया था, बहुत सारे लोग अंडरग्राउंड हो गए. So the answer what she gave was not justified. She said that she had taken the law because she felt law and order situation. अब कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियर नहीं है कि किस चीज को आप लॉ एंड ऑर्डर का थ्रेट बोलते हो. यस, इफ यू फील दैट देयर इज सम थ्रेट, बाहर से कोई आपके मतलब की इंटरनल उसमें कर रहा है, एंड यू फील देयर माइट बी समथिंग विच इज, जिसके अंदर आपको लगता है आपका मिलिट्री, आपका कोई इन्वॉल्व हो, देयर माइट बी अ थ्रेट, कूप हो सकता है, वो आपका एक सिचुएशन. बट नथिंग वाज क्लैरिफाइड. एंड सेकेंडली, हर ओन, उसके जो कैंडिडेचर है, इट हैड बीन चैलेंज्ड इन द इलाहाबाद कोर्ट कि शी हैड मिसयूज्ड द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. तो उनको जो है अपने प्राइम मिनिस्टरशिप को छोड़ना पड़ा था. शी हैड टू, बट शी अगेन चैलेंज इट इन द हायर कोर्ट, जहां पर शी वॉज, मतलब उसको एमपी से शी डिड नॉट रिजाइन, बट शी हैड टू गिव द, मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को उसने ब्रेक किया था. एंड एट दैट टाइम देयर वर मिसयूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक चेंजिंग द टेन्योर. Was the emergency required? So no. If you look into the depth, it was not. And as I said, what happened during the emergency? Emergency was arrest, preventive detention, then custodial death, जो मैंने आपको भी केरला का बताया, then मतलब बाकी जगहों पे बताया. सिटीजन्स के जो सिविल राइट्स थे वो आपके खत्म हो गए. लेकिन इसका एक लेसन क्या था, जो आपके पेपर का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द लेसन्स ऑफ द इमरजेंसी. तो इमरजेंसी से हमें एक चीज तो समझ आई, दैट वेदर वी आर इन अ टर्मोइल सिचुएशन, इंडिया विल नेवर लीव डेमोक्रेसी. सेकेंडली, जो कॉन्स्टिट्यूशन की एम्बिग्युइटीज थी वो हमारे सामने आई. अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि वी फेल्ट एनीथिंग इज मिसिंग.
लेकिन यहां हमें समझ आया कि समथिंग इज मिसिंग, देयर वाज नो क्लैरिटी which had to be taken. एंड थर्ड, अभी तक कभी लोगों ने सिविल लिबर्टी, सिविल राइट्स, अपने फंडामेंटल राइट्स को इतना देखा नहीं था. नाउ इट केम टू द understanding the value of civil liberties. Now people knew that there is a time, there is a need that we know what are our liberties. क्योंकि अभी तक तो हम लेते हैं देते हैं, we never know. तो emergency gave us this lesson that we need to be aware of our liberty so that nobody snatches it first. So that is the crisis of democratic order. यानी कि पूरा डेमोक्रेसी जो है वो उस वक्त में आपका हिल गया था. A very interesting chapter. In fact, my one of my very favorite student, she had made her project on this chapter only because she had a उनको जो है स्कूल से बिल्कुल they were given the option कि आप अपने आप करो, तो she took this chapter only. And personally, I have, मतलब कि I know this chapter very well because I've been told about all these from my own father. He used to tell me what were the things that actually happened. But one thing came is इसके बाद elections हुए, तो people showed their anger. इसके बाद there were two things like Congress bought save democracy. Sorry, Congress said गरीबी बचाओ, तो उन्होंने कहा save democracy. So the slogans were there, people started, opposition parties came up with their ideas and India ने एक नया सिस्टम देखना शुरू किया. एंड तब से हमारा वो जो सिस्टम है, टिल डेट वी आर फॉलोइंग दैट काइंड ऑफ सिस्टम. सो दैट इज द चैप्टर क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर. The second chapter which I am going to do today is regional aspirations. Yani the dreams, the need, the aspirations, demand of different people living in different democratic region. If you remember, we had read about the State Reorganization Commission, which was formed in 1953 to look into the demands of the regions which came into one single set. तो उससे हमें क्या फायदा मिला था? That India was divided into different states, different union territories. But then वो जो डिफरेंट हमारे स्टेट्स बन गए, डिफरेंट आपके बन गए या नहीं बने थे, कुछ अभी भी थे, उनके अपने कुछ रिकॉग्निशंस थी, अपनी कुछ डिमांड्स थी, लाइक मोर ऑटोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज, कल्चर और गवर्नेंस. सो दैट इज हाउ द रीजनल एस्पिरेशन वर्ड कम्स टू. नाउ इन इंडिया वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ रीजन. यू नो, इंडियन गवर्नमेंट ने हमेशा जो है यूनिटी, ये आपके पेपर का 6 मार्कर क्वेश्चन है, दैट व्हाट इज इंडियाज अप्रोच टुवर्ड्स रीजनल एस्पिरेशंस. सो इंडिया हैज ऑलवेज, क्योंकि अगर हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन को लेकर चलते हैं, वहां से हमें ये समझ आता है कि इंडिया ऑलवेज बिलीव्ड इन यूनिटी एज वेल एज डाइवर्सिटी. भाई साथ में लड़कर तुम लड़ रहे हो तो बेटर है कि हम तुमको अलग कर दें. And also the importance of regional identity. That is why the linguistic states, the language states were created. So India had an approach of democracy towards these aspirations. उनको एंटी, अगर उन्होंने कुछ मांगा है, उनको एंटी नेशनल नहीं समझा गया. उनको उनके डिमांड समझकर उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की गई. Like if you see, there were movements in Jammu Kashmir, Northeast, Punjab, Southern India के अंदर तमिलनाडु वाला जो है, but all these problems were dealt with some or the other way. But never it happened कि the portion इंडिया से अलग हो गया, ऐसा नहीं हुआ. When we attained independence, तो सबसे पहली जो हमारी प्रॉब्लम थी वही था प्रिंसली स्टेट,
आपका देन रिलीजन, जो रिलीजियस प्रॉब्लम्स थी वो, रीऑर्गेनाइजेशन, एंड सबको यही लग रहा था कि हाउ इट इज गोइंग टू इन, as you have already done in southern India, Dravid movement was there because ये जो Dravid movement था, that was based on the uh, language. Then there were areas like Andhra Pradesh. आंध्र प्रदेश में आपका सबसे पहले हुआ था, इनफैक्ट इट वाज बिफोर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, जब आंध्र प्रदेश को रिकॉग्निशन दिया गया था, जब पोट्टी सीताराम राजू जो थे, ही was dead due to the protest. Then Maharashtra and Gujarat. Next in Tamil Nadu, the movement also brought new political parties like DMK, AIA, DMK, क्योंकि वहां हिंदी को जो है लिया गया. इफ वी कम टू पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल, दे थ्री वर टुगेदर and three had different culture, different language, everything was completely different, तो उनको अलग किया गया. अगर हम रीसेंट पॉलिटिक्स में देखते हैं तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड आया आपका, बिहार से झारखंड आया, मध्य प्रदेश से आपका छत्तीसगढ़ आया, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना आया. So time to time, these kinds of problems have erupted, and the government has taken a democratic approach using the constitutional methods also to resolve such problems. Like when we divide a state, अगर हमें स्टेट को कार्व करना पड़ता है तो we need to go with the special majority. The government went through all the procedure and did it. अब आपके जो अलग अलग जगहें हैं, लाइक जम्मू कश्मीर, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट, आपके क्वेश्चंस भी उससे ही आएंगे. तो जम्मू कश्मीर इज वन ऑफ द वेरी कंट्रोवर्शियल. अंडर आर्टिकल 370 इट वाज क्रिएटेड, और उस वक्त में इट वाज आपके 3 रीजन्स थे, कश्मीर, जम्मू एंड लद्दाख. एंड दूसरा, जो वहां रहने वाले लोग हैं, बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स, so that was the ethnic problems. Then, as we know, what happened during the 47 period, when it was a princely state and the king had refused to merge with either India or Pakistan, when the infiltration happened and one of the portion went to Pakistan, वहां जो लोग थे, जो कश्मीरी हैं, वो कश्मीरियात बोलते हैं, and ultimately they did not want ki the country, that particular area should go with Pakistan. And there were certain things like Indian National Congress ने उस वक्त में जो शेख अब्दुल्ला थे, जो उनके बेस्ट फ्रेंड भी थे, उनके साथ मिलकर, and of course not to forget Sardar Vallabhbhai Patel, it was due with that कश्मीर को आर्टिकल 370 के अंदर it was merged to India, but with special provisions. Those special provisions gave special privileges to the people of Kashmir, a special constitution, special rights, but now Article 370 जो है, it has been removed. Now Kashmir as well as Ladakh region are 2 different union territories. They both are union territories, not statehood अभी नहीं मिला है, yet the peace has been retained. So this is how Jammu Kashmir की जो problem थी, उनको to some extent it was done, but it was not done completely. अगर हम देखते हैं तो उसको हम लोग complete नहीं करते हैं. Similarly, we go with the north east. वहां पर तो बहुत सारी अभी प्रॉब्लम्स है, अभी भी हैं वहां पर. That's because it's one of the area which is surrounded by international border, communication, and it is cut from the rest of the India. तो वहां पर आपके जो है ऑटोनॉमी, देयर इज ऑपोजिशन टू आउटसाइडर्स, ये आपका जो है वहां एक बहुत बड़ा
प्रॉब्लम है। दिस इज ऑल, ये जो मैंने बीच में डाला हुआ, दीज आर ऑल फ्रॉम द कश्मीर वन, राइट? So if we talk about नॉर्थ ईस्ट, सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो मणिपुर एंड त्रिपुरा जो था, दैट उनको छोड़कर, मणिपुर वाज अंडर बोधराज एंड किंग बोधराज, द रेस्ट ऑफ द एरियाज वर विद असम। एंड इनिशियली देयर वाज नॉन असमीज, जो असमीज लैंग्वेज को अपने ऊपर इम्पोज करते हुए दे वर अगेंस्ट, एंड दे वांटेड कंप्लीटली पॉलिटिकल ऑटोनॉमी। And then there is, the Northeast is more towards the tribal community. So उनकी अपनी मतलब की, so there was all party hills conference which was held in 1960, and the main was to create states out of Assam, और इस तरीके से मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश जो है, they were carved from Assam. Yet there was more, like बोडो, कार्बीस, दिमसास, इन्होंने जो है अपने आप को और अलग करने के लिए दे आर डिमांडिंग, बट इट इज नॉट पॉसिबल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कोशिश कर रहा है विथ अदर प्रोविजंस, गिविंग देम सेपरेट, मतलब कि सम अदर प्रोविजन, तो दे आर, जैसे बोडो मूवमेंट बहुत फेमस है, इफ यू रीड अबाउट देम इन द, सो दिस इज हाउ असम वाली जगह जो है वहां एक प्रॉब्लम आई है। दूसरा, देर आर एरियाज लाइक मिजोरम एंड नागालैंड जहां अंदर ही सेक्शंस है। द मिजो हेल जो है, इट वाज मेड ऑटोनॉमस, असम के अंदर है लेकिन वहां पर जो रूलिंग है वो अलग था। एंड दिस अगेन देयर वाज अ पॉपुलर मूवमेंट, मिजो नेशनल फ्रंट ने जो किया था अंडर लाल डेंगा, देयर वाज अ गुरिला फाइट, एंड अल्टीमेटली राजीव गांधी जी जो देन प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने पीस एकेडमी मतलब कि वो किया, एंड मिजोरम को जो है थोड़ा सा पीसफुल किया। देन नागालैंड, इट ऑल्सो हैड सर्टेन, एंड द नागास हैड साइन द गवर्नमेंट, सॉरी, द अग्रीमेंट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, येट अभी इतना ज्यादा वहां पर जो है दे हैव नॉट इम्प्लीमेंटेड। सो इफ वी लुक इनटू देयर प्रॉब्लम्स, इट इज जेन्यून, बिकॉज उनका कल्चर बहुत अलग है। नाउ इफ यू लुक इनटू सिक्किम, तो सिक्किम वाज अ प्रोटेक्टोरेट, मतलब इसको प्रोटेक्शन मिलता था फ्रॉम इंडिया, इट वाज नीदर पार्ट ऑफ इंडिया नॉर एन इंडिपेंडेंट कंट्री। इंडिया ने उनके डिफेंस एंड फॉरेन रिलेशंस को मैनेज किया, एंड ओवर द टाइम दे कुड नॉट सी द डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस वहां पर जो रूलिंग पार्टी थी चोग्याल, एंड देन मेजॉरिटी जो थे देवर नेपालीज, एंड उनको लग रहा था कि जो सिक्किम के जो लीडर्स हैं दे आर गिविंग मोर सपोर्ट टू द लेप्चो भूतिया कमिटी, और इस वजह से क्या था कि देयर वाज अ काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। एंड जब इंडिया ने थोड़ा इंटरवीन किया 74 में, वहां पर इलेक्शंस हुए, एंड दे वांटेड इंटीग्रेशन विद इंडिया। द असेंबली इनिशियली तो उन्होंने कहा एसोसिएट स्टेट, बट लेटर ऑन इट बिकेम द 22nd स्टेट। और इसमें से पेपर में यही क्वेश्चन आया है कि विच इज द 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। दिस हैज कम एज एन एमसीक्यू, दिस हैज कम एज मैप क्वेश्चन, दोनों में आया है और इस वाले में से यही आया है। सो इवन दो not completely, but now it is part of India, but not everyone was in this support. तो ये इसकी एक प्रॉब्लम थी। द नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज पंजाब। पंजाब की अपनी ही एक कहानी है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कि पंजाब का जो एक स्टेट है, दैट वाज, इट इज सेड दैट इट रिसीव द एक्सटर्नल सपोर्ट,
मतलब इंडिया से बाहर से उसको सपोर्ट मिल रहा था इन बीइंग पाकिस्तान ऑन द बॉर्डर साइड there is always a possibility of infiltration conflict and in 80s it was कि पंजाब में जो है प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी द अकाली दल जो 1920 में फॉर्म हुआ था दे वांटेड अ सेपरेट खालिस्तान वो लोग जो है एक पंजाब के लिए पंजाबी और खालिस्तान जो है वो बिल्कुल अलग करना चाहते थे दे वांटेड दैट देयर शुड बी अ कंप्लीट वे वहां पर प्रॉब्लम क्या थी कि जब अकालीस थे इन पावर तो दे फॉर्म्ड बट दे वर डिसमिस्ड बाय द सेंटर तो अकाली दल जो थे उनको दे वर पॉलिटिकली वीक एंड दे डिड नॉट हैव द सपोर्ट ऑफ द हिंदूज आल्सो और इसीलिए दे वांटेड उन्होंने जो है कॉन्फ्रेंस किया था आनंदपुर साहिब में जिसको आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन करते हैं एंड दे एम्फसाइज्ड ऑन अ सेपरेट एरिया कॉल्ड खालिस्तान और इसकी वजह से देयर वाज अ साइकिल ऑफ वायलेंस व्हिच वाज कैरीड ऑन in Punjab during that period. As I said, there used to be मतलब कोई एक दिन ऐसा नहीं रहता था जब कभी आपके साथ में ये ना हुआ कि पंजाब में आज नहीं हुआ. That was the first time, in fact, in Indian history or political history, when people had heard about the word terrorism. जो टेररिज्म वर्ड आया था ना वो ये उसी वक्त आया था. And the government had to take very harsh step. Like it was said that there were some meetings inside the holy shrine of Gurudwara Golden Temple. Indian government took that very famous Operation Blue Star, जो army action था, जिसमें आपके army officers were in the plain dress. But because it was done in the holy shrine, तो सिख के sentiments काफी betray हुए थे, and Indira Gandhi was punished by being killed inside her own residence on 31st October in 84 और इस किलिंग को फॉलो किया था नॉर्थ इंडियन वायलेंस जो दिल्ली कानपुर पंजाब इनमें सबसे ज्यादा था लेटर ऑन इट केम टू एन अब्रप्टली एंड एंड आफ्टर अराउंड 20 days बहुत टाइम हुआ था इसको मतलब 2 weeks तो बहुत रहा था कानपुर बोकारो दिल्ली ये सारे तो बहुत ज्यादा थे 84 में जब राजीव गांधी जस्ट आफ्टर द असैसिनेशन व्हेन राजीव गांधी बिकेम ही हैड अ टॉक ही आल्सो साइंड एन एग्रीमेंट विद प्रेसिडेंट हरचंद सिंह लोंगोवाल जिसको हम पंजाब अकॉर्ड कहते हैं और ये पेपर में आपके 2 marks में आता है व्हाट वर द कंटेंट्स ऑफ पंजाब अकॉर्ड और ये माना गया था कि वो जो बॉर्डर डिस्प्यूट है जो वाटर डिस्प्यूट है रावी और व्यास का वो एंड जो आपका कैपिटल है चंडीगढ़ दैट वुड बी गिवन टू पंजाब yet some of the problems have been solved some of the problems have not been solved कुछ प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो गए हैं लेकिन कुछ अभी भी रहते हैं अभी भी अगर आप देखोगे तो चंडीगढ़ इज इन बिटवीन आपका चंडीगढ़ जो है अभी भी बाद में ही है अभी भी बीच में है चंडीगढ़ स्टिल द कैपिटल ऑफ बोथ हरियाणा एंड पंजाब yet after this particular period पीस रिस्टोर्ड अब वो पीरियड नहीं है वहां पर जो उस वक्त में था जो दहशत थी दैट इज नाउ नॉट देयर सो अगर हम इन 3 एरियाज को देखते हैं वन इज कश्मीर विच हैज बीन अ पार्ट ऑफ द कंट्रोवर्सी सिंस इंडिपेंडेंस सेकेंड वन नॉर्थ ईस्ट में देर आर सेवरेट जोन्स अभी हम कहते हैं देर इज 7 sisters लेकिन ये 7 sisters ones were part of one single state that is आपका असम असम से कैसे एक एक करके ये अलग हुए एंड व्हाट आर द डिफरेंट एस्पिरेशंस दे स्टिल हैव लाइक असम के अंदर आप जाते हो तो असम के लोगों का मानना है कि वहां पर बांग्लादेश एंड अदर एरिया से आउटसाइडर्स यानी कि द पीपल हु आर नॉट बिलोंगिंग टू दैट एरिया हैव बिकम मोर प्रोमिनेंट उसकी वजह से उनको एम्प्लॉयमेंट उनकी लाइवलीहुड पर जो है फर्क हो रहा है सो देयर इज अ वेरी बिग मूवमेंट व्हाट वी कॉल एज मूवमेंट अगेंस्ट द आउटसाइडर्स
And that is why time and again they have been asking for this autonomy कि वहां पर जो है the मतलब कि refugees should not be there, the illegal the migrant should not be there. वो लोग अभी भी उनका जो है ये है, even though the government is trying with so many other areas like citizenship act लेकर आ रहे हैं, CEA, जिससे कि पता लगे कितने मतलब कि illegal migrants हैं, how many are there, still there are certain problems which has to be taken. So that is आपका regional aspirations. You can expect a question on Punjab Accord in 2 marker. सिक्किम कौन सा स्टेट था, ये 1 मार्कर में आया. नॉर्थ ईस्ट का आपका बिल्कुल 4 मार्कर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. एंड कश्मीर वाला जो है दैट कैन बी कि कब आपका जो है रिवोक हुआ था आर्टिकल 370, सिंस द चैप्टर इज ऑफ 4 मार्कर, सॉरी 6 मार्कर, 2 + 4 you can expect. The last chapter of your second book and the last chapter in the revision series is Indian politics, that is the recent developments. तो recent development में क्लास 12 आपको हर वो चीज अपने दिमाग में रखनी है जो अभी हो रहा है. Maybe it is part of your book, maybe it is not part of your book, but in politics we always keep everything in front of us. हम पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं लेकर चल सकते हैं कि ये चीज तो हमारे बुक में नहीं थी. लाइक सम ऑफ द थिंग्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर मतलब कि जो है वो डिलीट हो गया, लेकिन वो है, दे आर पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स. वी नीड टू स्टडी देम टू अंडरस्टैंड बेटर. नाउ अगर हम लेकर चलते हैं रीसेंट पॉलिटिक्स, तो अभी हम कहते हैं एक, पहले हम कहते थे कांग्रेस सिस्टम. दैट सिस्टम हैड अ चैलेंज, there was a break, that system changed into system of ideological differences. Then there was a time when India faced a crisis in the democratic order. Then there was rise of opposition party, multi-party system, and today we are living in one more era, what we call as not as a Congress system, but now it is said as BJP system. तो ये जो शेप अप हुआ है ना, यहां से यहां तक आने में, ये सारा हमारा रीसेंट डेवलपमेंट में है कि इन पीरियड के अंदर क्या क्या हुआ. लाइक if you see the very first, it is that defeat of the Congress party in the elections in 1809, because during those periods 70-75 के बाद, after the imposition of elections, sorry, emergency, जनता पार्टी आई, but it could not bring up any philosophy, any political principles. But when मंडल कमीशन आया, तो मंडल कमीशन ने पूरे पॉलिटिक्स को दोबारा शेप अप किया. द रीजन मंडल कमीशन गेव अप, मतलब कि गेव द न्यू पॉलिटिक्स ऑफ बैकवर्ड कम्युनिटी. देन थोड़े टाइम के बाद आपका जो है डेमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद वाली प्रॉब्लम आई, and then assassination of Indira Gandhi followed by assassination of Rajiv Gandhi. So these were the मतलब कि डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस फ्रॉम 78 से 90 के बीच में. 12 साल के अंदर इतनी सारी चीजें आ गई. To begin with, it was, as I said, this was also the phase of coalition. 75 के बाद जो इलेक्शन हुआ था, इंदिरा गांधी could not win. At that time, जनता दल came, but it could not. उस वक्त में there were 2 parties which came up with oppositions. एक बार कांग्रेस को लेकर, एक बार बीजेपी को लेकर, but they could not survive, and that was the beginning of coalition politics in India. 1 marker question. And उसके बाद से there have been 11 governments and most of them have been coalition या फिर the support of मतलब की minor parties. Also that is the period, as I have already said, multi party system हुआ, और उसके बाद आपके जो है कांग्रेस डिक्लाइन हुआ. From 78 to a certain period multi party coalition was there. Then
Congress came into power, but in Delhi. Then Congress came into the power at the center, और उसके बाद the current government BJP came into the power. And BJP जब उसमें आया, तो it was not with coalition, it was not under alliance, it was a clear majority. 2014 और 19 वाले जो इलेक्शंस थे, उसके अंदर आपका क्लियर मेजॉरिटी था. देयर वाज नो नीड ऑफ एनी कोएलिशन. अभी जो है देयर इज अ मतलब कि सपोर्ट आपका चल रहा है. हमने सबसे पहले पढ़ा था कि कांग्रेस डिफीट हुई. द सेकेंड प्रॉब्लम वाज द अराइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ बैकवर्ड कम्युनिटीज. मंडल कमीशन आया. दैट वाज अ टाइम व्हेन बीएसपी वाज फॉर्म, मतलब कि बहुजन समाज पार्टी, एंड दैट मोबिलाइज द सपोर्ट ऑफ द बैकवर्ड कम्युनिटीज. और पार्टी सिस्टम्स में डिफरेंसेस आने लगी. बामसेप आपका फॉर्म हुआ था, दैट इज बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन. और इसकी वजह से आपके जो है अलग अलग तरीके के जो इश्यूज है वो सामने आया था, क्योंकि मंडल कमीशन एक ऐसा है जिसकी वजह से सबसे पहले आपका जो आपका बैकवर्ड कम्युनिटीज का जो पॉलिटिक्स है वो सामने आया था. नेक्स्ट आपका इसके बाद थोड़ा टाइम सब ठीक रहा. SC STs आए, देन थिंग्स चेंज अ बिट. फिर रिलीजियस आइडेंटिटीज आ गई आपकी. पहले आपका कांग्रेस नीचे हुआ, मंडल कमीशन आया. द नेक्स्ट वाज द प्रॉब्लम्स ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी, because at that time BSP, that is Bahujan Samaj Party, based on reservation, based on backward communities, based on scheduled caste arise हुआ. दूसरी तरफ आपका अर्स्टवाइल जो बीजेपी, पहले आपका जो मतलब कि भारतीय जनसंघ था, which was coined by VD सावरकर, हिंदुत्व, पितृभूमि एंड पुण्य भूमि, यानी कि स्ट्रॉन्ग नेचुरल कल्चर, वो आपका जो है बाहर आया. दैट वाज द वन व्हिच केम अप. Even though in the initial BJP did not get any support on the ground that उनको लगा हिंदुत्व मतलब हिंदू नेशन, सेक्युलरिज्म को मतलब कि हटा दिया जाएगा. हिंदुत्व डिड नॉट बिलीव इन सच रिलीजियस डाइवर्सिटी. उनका मानना था कि डाइवर्सिटी विल बी देयर एंड यूनिटी विल बी देयर. हिंदुत्व वाज नेशनल कल्चर, और उसको समझने में लोगों को थोड़ा टाइम लगा. एंड वो टाइम के साथ एक चीज और हुई थी, और वो ये था कि बाबरी मस्जिद वाज डेमोलिश्ड इन अयोध्या, जिसकी वजह से बीजेपी का आगे आना एंड हिंदुत्व वाला जो एक पोजीशन था उसका डिफरेंट कनोटेशंस निकले. एवरीबडी कॉइंड, मतलब उन्होंने रिलेट किया बीजेपी विथ हिंदू राष्ट्र. दे बिलीव कि मुस्लिम्स आर इन डेंजर, which was not like that, which was not like that. और इसका हमारे पास एग्जाम्पल है शाह बानो केस. इसका एग्जाम्पल है शाह बानो केस. एंड व्हाट इज द शाह बानो केस अबाउट? शाह बानो केस जो है, इट इज अबाउट अ मुस्लिम वुमेन जिसने अपने तलाक होने के बाद, डिवोर्स के बाद, शी हैड अप्लाइड इन द कोर्ट that she needed the maintenance, और सुप्रीम कोर्ट ने उनके फेवर में जजमेंट दिया, because Indian constitution gives this right. A woman can take maintenance if she is not able to मतलब कि survive और अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर सकती है. लेकिन वो जो मुस्लिम बोर्ड था, they were against. उनका मानना था कि मुस्लिम का जो मैरिज लॉ है वो इस चीज को परमिट नहीं करता है. एंड जो देन गवर्नमेंट था कांग्रेस का, उन्होंने मुस्लिम बोर्ड के साथ मिलकर उनके वोट के लिए वो जो सुप्रीम कोर्ट का जो मतलब कि वर्डिक्ट था उसको नलीफाई कर दिया, दैट दिस कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड. एंड दिस वाज क्रिटिसाइज्ड बाय बीजेपी. और ये चीज आप सोच सकते हो
कि this itself shows that BJP did not believe in Hindu Rajya, it is Hindutva. They believed in equality. But that was a time when communalism, secularism, democracy, all were different. But after this period, there was a time when the parties understood. एक ये पेपर में आता है, जो 9th वाला है ना, ये आपके पेपर में आता है, और कोई भी इस चैप्टर से बहुत ज्यादा नहीं आता है, बट ये वाला जरूर आता है. हु कॉइंड पितृभूमि एंड पुण्य, मतलब कि पुण्य भूमि, वीडी सावरकर. हिंदुत्व बीजेपी का. शाह बानो केस आपका 2 मार्कर का. लेकिन ये वाला जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट इज द ग्रोइंग कंसेंसस, ये आपका 6 मार्कर क्वेश्चन इस चैप्टर से आया हुआ है, एंड यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट. और इस चैप्टर से 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा. एंड द ग्रोइंग कंसेप्शन ये है कि नाउ there are two things which are simultaneously going in the politics. एक alliance politics. Like अभी हमारे पास 2 मेजर अलायंस है. वन इज एनडीए, जो करंट हमारे रूलिंग गवर्नमेंट है, बीजेपी, दे आर द हेड. एंड सेकेंड इज आपका यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, विच इज हेडेड बाय कांग्रेस. And most of the regional parties and small parties, either they have joined this, उन्होंने या तो एनडीए को किया हुआ है या फिर वो लोग. And of course there are some parties which have not joined either of them. कुछ एक्सटर्नल सपोर्ट्स देते हैं, मीन्स वो अपनी वोट को शेयर नहीं करते हैं, बट एक्सटर्नल सपोर्ट देते हैं. On the other hand, there have been certain things which all the political parties, whether they have the ideological differences, they have the regional differences, communal differences, secular differences, but they have agreed to certain common politics. Like NEP जब हमारे इंडिया में आया था, the new economic policy, which was introduced by PV Narasimha Rao, who was a prime minister, and Dr. Manmohan Singh, who was a finance minister. That was a time when India was once more going through the economic recession period. Initially, there were certain apprehensions कि ये जो economic policies हैं, लेकिन बाद में there was an agreement on this economic policies which was consensus. Support ना भी किया, लेकिन किसी ने oppose नहीं किया. और उसके बाद जो भी गवर्नमेंट आया, उसी चीज को उन्होंने आगे किया था. Secondly, BAMSEF, BSP, such political parties which came up only during this period, जो ना कांग्रेस वाला टाइम था ना बीजेपी वाला टाइम था, ये उस पीरियड में आया था when the politics of backward community all came up, उसको भी मेन एरिया में जगह मिल गई. They have been accepted the state level. और पहले क्या था, स्टेट लेवल में जो पार्टीज होती थी उनका सिर्फ स्टेट से काम होता था, रीजनल में ही काम होता था. नेशनल पॉलिटिक्स में दे नेवर हैड एनी से. बट when the political parties saw the alliance parties, alliance में क्या होता है, the regional parties they give their support, like एनडीए को सपोर्ट है आपका, टीडीपी का, या फिर तो उससे दे आर स्ट्रेंथन. तो अब जो पहले पार्टीज थी जो सिर्फ अपने स्टेट में काम करती थी, अब वो नेशन में भी इनडायरेक्टली काम करती हैं, बिकॉज देयर वोट्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन द मेन वोट. एंड नाउ instead of the political alliances there has been a pragmatic, practically कौन सी चीजों को लेना है, ये चीज अब जो है पॉलिटिक्स में है. एंड इस क्वेश्चन को लर्न करना मत भूलना क्लास 12. This is one of the very, very, very important questions from this chapter. Because one question, as I had already told you in my earlier session, एक question इस chapter से 100% आएगा.
तो ये वाला क्वेश्चन, व्हाट आर द, मतलब कि व्हाट इज द कंटेक्स्ट हमारा पॉलिटिक्स का इन द 1990s? दैट वाज अ टाइम व्हेन रीजनल पॉलिटिक्स स्टार्ट हुए, पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन आपका रिलीजन, पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन आपके कम्युनिटी, पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन आपके उसका नाम क्या, मंडल कमीशन, ये हुआ। देयर वर, उससे रिलेट करके कई आपके इवेंट्स हुए, लाइक मंडल कमीशन हुआ था तो दिल्ली एंड जो आपका नॉर्दर्न जोन था वहां पर आपका काफी देयर वाज अ साइकिल ऑफ वायलेंस। देन रीजनल पॉलिटिक्स अगर हम कहते हैं तो दैट वाज अ टाइम व्हेन बाबरी मस्जिद वाज demolished, and of course it was also followed by one more thing which right now is not part of your syllabus, so I'm not going to take up. Then third, when we talk about Rajiv Gandhi, तो इंटरनेशनल अगर हम कहते हैं तो certain elements could not tolerate, and Rajiv Gandhi was assassinated, and that was a time when we needed strong leaders. और उसके बाद से पॉलिटिक्स हमारा रहा फॉर सर्टेन पीरियड, कांग्रेस वंस अगेन केम इनटू पावर, बट सर्टेन थिंग्स वर नॉट इन इट्स हैंड। देन फिर उसके बाद बीजेपी आया। The first two, 2014 and 19, we never needed any support. It was a complete full majority. This time जो आया है वो एनडीए के आया है, एंड एनडीए का वन, एनडीए का टू, ये आपके उसमें भी है इन योर मतलब कि आपका रेफरेंस मटेरियल में है। एनडीए वन इज 2014, एनडीए टू इज 2019। दे इंट्रोड्यूस मेनी चेंजेस। आपका प्लानिंग कमीशन जो था दैट वाज चेंज्ड इनटू नीति आयोग। With Niti Aayog, many new policies, many new schemes like Make in India, they were introduced. It was based on India's self-sufficiency. It was based on India's efficiency to deal with any kind of border or internal disputes. आपके जो है नई चीजों को लेकर आए, more innovations, more privileges to the people living in the rural areas, MSME, through various आपके changes, ये आपके आए थे under NDA 1 and NDA 2. Now it is the third session of NDA 3 going on, and yesterday Mrs. Nirmala Sitaraman had given her budget, the annual budget for the third session. एंड अब जो अगर हम पॉलिटिक्स देखते हैं फ्रॉम 2014 टू 2025, now we cannot say that it is a multi party or an alliance party. Now people say, ये पेपर का क्वेश्चन है, मेरा नहीं है, it is a BJP system. Like earlier we used to say the ideology of Congress was the Congress system. Now the ideology of BJP is prevalent, and now it is said as a BJP system. The BJP system means most of the states, most of the people are agreeing to the policies, to the philosophies of BJP. And though they may be having ideological differences, yet they want to support, and वो जो उनका है फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, इंडिया शुड बी वन, सिंगल सिटीजनशिप, ये सारी चीजों को जो है मतलब कि द पीपल आर एक्सेप्टिंग एंड वांट टू एक्सपैंड. So that is the recent development in Indian politics.